Hello everyone. I've come up with again a very useful topic, differential equation, mainly the application part, physical and geometrical applications of differential equation. So various type of problems I have taken in this video. I hope you will enjoy it and will learn something from this. My name is Shashank Shekhar, master teacher of mathematics at Vedantu. Here is my detailed introduction. I've taken in this video the various different applications, situations here. First of all, free fall with air resistance, then outflow and decrease of water level in a tank problem, Newton's law of cooling problem, law of heat flow across an area, radioactive decay problem, concentration of gas in a room, chemical reaction and solution problems, orthogonal trajectories, symmetrical application के अंदर, Claudett's application in tangent related problems, Clairaut's differential equation, आपको पता होगा शायद, and देखते हैं teacher question, as you know, the double reaction problem. Okay, so I'll show you at the end of the video with the teacher question. So one by one, coming up with one by one, the very first. So I've taken so many different situations as you saw in the content video, content page. ठीक है. So free fall with air resistance. ये कहता है a body of mass m is dropped from some height h, suppose. If in addition to the force of gravity the body is acted upon by the deceleration force of the air drag, it means air drag लग रहा है, air उस पर एक resistive force लगा रहा है opposite to the movement of the direction, which is proportional to the velocity v. Sometimes it is given proportional to v square depending upon the situation. With proportionality constant k, it is required to establish the law according to which the velocity v will vary with time t as the body falls. Alright. सो क्लियर है सिचुएशन. देखिए, जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें एक तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स आएगा, है ना, m इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड अपोजिट टू द मोशन एयर फोर्स, एयर ड्रैग आ रहा है, दैट इज गिवन k टाइम्स v एयर. ठीक है. सो फाइनल जो मूवमेंट है, जो एक्सीलरेशन होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन, so m into a, the resultant of the two, that is mg minus kv, and a क्या है, a हमारे पास है basically a is rate of change of velocity dv by dt, acceleration है mg minus kv. तो अब इसे हमें सॉल्व करना है. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग v. ठीक है. तो दिस इज सिंपल, कह सकते हैं कि linear variable separable differential equation, we can call it m times dv upon mg minus kv is equal to dt, and putting the limits, very simple. So when t is 0, it is a case of free fall. All right, so just it is dropped. Okay, so at t equal to 0, velocity is 0. At t equal to t, we need to find the velocity v. So just integrating it, what we get, m अपॉन माइनस के, इंटीग्रेशन इसका लॉग में आएगा, mg माइनस के वी, एंड पुटिंग द लिमिट्स 0 to v विल बी इक्वल टू, सो इसको अलग कर लेते हैं. ठीक है. एंड इज इक्वल टू t सिंपली. सो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग all right, minus so t is equal to minus m by k, and putting the limits ln of, when v is v is 0, so it is mg minus kv by mg. So that is nothing but minus m by k ln of 1 minus kv by mg. Now writing it as 1 minus kv by mg is equal to e raised power minus kt by m. All right, so finally v would come as mg by k 1 minus e raised power minus kt by m, that we had to find. यही हमें फाइंड करना था, v as a function of t. All right, so a simple problem.
of application of differential equation. All right, coming to the next. What is next there? Outflow and decrease of water level in a tank. So देखते हैं क्या सिचुएशन है. हेमी स्फेरिकल टैंक, मतलब ये अगर हम सेंटर ले लें, इसका हमारे पास सेंटर है यहाँ पे, तो यहाँ से हर पॉइंट जो टैंक के किसी भी पॉइंट को देखो तो डिस्टेंस 2 आएगा. रेडियस यहाँ पे गिवन है 2 है, रेडियस है. इज इनिशियली फुल ऑफ वाटर एंड हैज़ एन आउटलेट ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया एट द बॉटम. यहाँ पे बॉटम की बात चल रही है यहाँ पे. ओके, so the outlet is opened at some instance. The flow through the outlet is according to the law of Vt is equal to 0.6 under root 2 gh. H is the height at time t, and V is the velocity of the outlet at time t. Velocity at the outlet, respectively the velocity and the flow through the outlet, height of the water level above the outlet at time t. G is the acceleration due to gravity. So G की value is close to 10, 9.8 meter per second square. Find the time it takes to empty the tank. So first of all, the area is 12 centimeter square. We need to convert it in meter unit. That is 12 into 10 is per minus 4 meter square, right? So it is based on basically लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कह सकते हैं आप, जिसमें m1 v1 इक्वल m2 v2 करते हैं. या सिंपली अगर मैं बोलूँ उसके भी बेस में जाएँ तो दैट इज अमाउंट जो है मास कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है. अमाउंट ऑफ वाटर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अमाउंट ऑफ वाटर रिड्यूस्ड इन द टैंक हम कह सकते हैं इज इक्वल टू water removed from the outlet. All right, so यहाँ पे देखें, let the रो मान लेते हैं डेंसिटी है, दैट इज अ कांस्टेंट. सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना, देखिए यहाँ पे एक प्लेट बनाया गया है, एक एलिमेंटल प्लेट. सो उसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, मैं एरिया लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, और इनटू जो टोटल विड्थ है दैट इज डेल्टा एच, और पर यूनिट टाइम अगर बात करें तो डी एच बाई डी टी, डेल्टा टी टेंस टू जीरो पे डी एच बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज, एंड इट इज नेगेटिव. सो it should be minus of, I mean इसको ठीक है. so the amount removed from the outlet, that is rho into area, that is 12 into 10 raised power minus 4. आउटलेट का एरिया ये हो गया, और इसका जो पर यूनिट टाइम जो इसमें जो अमाउंट निकल रहा है, मतलब उसका जो वेलोसिटी है दैट इज Vt, and Vt is here given 0.6 into under root 2gh, ये given है. All right, so if you further simplify it, rho got cancelled, and finally we can write it as pi r square upon 12 into 10 raised power minus 4 into 0.6 into root 2g. All right, so this into integration of dh by root h. Okay, one more thing, we should first find a relation here in this case. So there is a relation between r and h. How can we establish that? So total height जो है वो आपका 2 है, radius of the tank, and so this part is 2 minus h, as you can see in the picture, 2 minus h. We can apply a Pythagoras theorem here. This is 2 minus h, this is r, all right, this is 2 minus h, and this is 2.
So here we can apply 2 minus h whole square plus r square is equal to 2 square. From here you'll get r square as 4 got cancelled, so it is 4h minus h square. So we can put the value of r here. So pi into r square को I can write 4h minus h square dh, and अपॉन रूट एच में ले आता हूँ लेफ्ट से राइट से. सो हेयर 12 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 इंटू रूट 2g एंड डी टी. सो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे. अब वी कैन इंटीग्रेट इट. सो एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वुड बी, तो एवरीथिंग इज देयर ना, कुछ छूटा तो नहीं. 12 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 0.6 यहाँ पे रह रहा है एक. सो 0.6 इन 0.6 is there now. All right. Uh, 12 into 10 raised power minus 4 into 0.6. All right. And when t is 0, at time t equal to 0, the tank was completely filled. So the height was 2. When t is and minus sign is also there. 1 minute. Yeah. माइनस साइन भी आएगा क्योंकि डी एच बाई डी टी एच इज डिक्रीजिंग ना, तो डी एच बाई डी इज नेगेटिव, तो माइनस इसलिए लगाया था. आप चाहो तो माइनस यहाँ डालो और ये प्लस है. और बच्चों यहाँ पे व्हेन टी इज 0 एच इज 2, व्हेन टी इज आफ्टर व्हाट टाइम द टैंक, मतलब फाइंड द टाइम इट टेक्स टू एम्प्टी द टैंक. हमें वो टाइम बताना है, तो वो टाइम हम टी मान लेते हैं. और फाइनली जब टैंक एम्प्टी हो जाएगा तो हमारा जो एच की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, स्मॉल एच की वैल्यू. यू कैन सी इन द पिक्चर. ठीक है. सो इसको हमें वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, और इसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है. सो फ्रॉम हेयर व्हाट विल गेट, विल गेट माइनस ऑफ, okay, here pi was also there, pi r square I have written that, and okay, so it is minus pi, and the integration is 4 root h. 4 times root h का integration is 4 into 2 by 3 into h का power 3 by 2 minus h square. So that is h का power 3 by 2 integration is 5 by 2 by 5 and h raised power 5 by 2. all right, and we have to put 2 and 0 here. So हम प्लस करके यहाँ पे 0 and 2 कर सकते हैं. एंड यहाँ पे बच्चों 12 into 0.6 into root 2g into 10 raised power minus 4 into t. So t हमें बताना था. So t की वैल्यू फाइनली आएगी ओके पाई अपॉन 12 इंटू 0.6 इंटू रूट 2g, आप समझ रहे हैं, इंटू 10 raised power 4. all right, everything is there. Now we have to find the limit here. Putting the limit h 2 पे it is 2 root 2. So 4 to 8 into 2, 16 root 2 by 3 minus, when h is 2, it is h raised power 5 by 2 is 4 root 2. 4 root 2 into 2 is 8 root 2, 8 root 2 by 5. So finally it is coming as pi into 10 raised power 4 divided by 12 into 0.6 into root 2g into 80 रूट 2. वी कैन कैंसिल रूट 2 ना, तो रूट 2 को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं हम. यहाँ पे रूट 2 जी में से रूट 2 कैंसिल कर दिया, और वी आर लेफ्ट नाउ विद 80 माइनस 24, दैट इज 56 अपॉन 15. सो द फाइनल आंसर इज दिस. अब इसको थोड़ा सा वी कैन सिम्प्लीफाई इट फर्दर. सो
12 56 8 4 root 2 got cancelled, it is root g, and 15. All right, so this is 0.6 को we can write 3 by 5, 3 by 5, so 5 3 4 3 4 14. So I think the answer is 14 pi upon 27 root g into 10 raised power minus 4. All right, into 10 raised power 4. Sorry, into 10 raised power 4. ये आ जाएगा, इसमें इतने सेकेंड्स कह सकते हैं. So and as I can remember, it is close to, I think, 5200 seconds, ऐसा कुछ, it's quite close to that, and is 1 hour roughly. अगर हम जाएं 27 minutes, 1 hour 27 minutes के आसपास आ गए. This is the final answer to this question. So I hope you got the point. So basically calculation was there. So coming to the Newton's law of cooling problem, the rate of cooling of a substance in moving air is proportional to the difference of temperatures of the substance. ये Newton's law of cooling का रूल है, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है. ये गिवन है यहाँ पे. And the air, a body originally at 80 degrees centigrade cools down to 60 degrees centigrade in 20 minutes. The constant temperature of the air being 40 degrees C, what will be the temperature of the body after 40 minutes from the original? Okay. तो हमें क्या करना है, कह रहा है कि तो इसमें मान लेते हैं लेट एट टाइम टी. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जनरल एक किसी टाइम पे इस अमाउंट का हमें देखना है कि जिस क्वांटिटी का रेट चेक करना है, रेट आई मीन उसकी वैल्यू कम हो रही, ज़्यादा हो रही, तो उसको हम किसी टाइम टी पे कुछ अज्यूम कर लेते हैं. लेट एट टाइम टी द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज थीटा. ठीक है, ऐसा मान लिया. अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, अच्छा रूम टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सी, ये फिक्स होगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है. और अकॉर्डिंग टू द लॉ d theta by dt, the rate of change of temperature with respect to time, and that as the temperature is reducing, cool हो रहा है यहाँ पे. इनिशियली बॉडी का जो टेम्परेचर 80 डिग्री सी था, तो ये नेगेटिव आएगा बिकॉज थीटा इज डिक्रीजिंग. सो माइनस ऑफ, एंड वी कैन अज्यूम द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज के, एंड डिफरेंस ये लिख रहा है कि प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ द सब्सटेंस एंड द एयर एट एनी टाइम. एयर का टेम्परेचर है आपका 40, तो ये मान सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन यू इंटीग्रेट दिस ना, तो हमें क्या मिलेगा, d थीटा बाई थीटा माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस के टी. और इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं. इसका इंटीग्रेशन मिलेगा माइनस के डी टी है, के डी टी फिर इंटीग्रेट कर लेंगे. तो यहाँ पे पहले मैं इसमें के डी टी ही लिखता हूँ, और देन विल पुट द लिमिट्स डी टी व्हेन टी इज लेट्स फाइंड फर्स्ट द proportionality constant. उसके लिए this information is given that it cools down from 80 to 60 in 20 minutes. तो यहाँ पे आपको लेना है 0, तो इसका 80 लेना है, और यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 60 लेना है. तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी. k की वैल्यू देखिए क्या आएगी, log ऑफ थीटा माइनस 40 में थीटा 60, तो log 20 बाई 40, तो ये आएगा माइनस ऑफ ln 20 by 40
by 20. So that is I think ln 2 by 20. एंड फिर से इंडिकेट करें जनरल वे में. सो यहाँ पे डी थीटा बाई थीटा माइनस 40 करेंगे जनरल वे में माइनस, और के की वैल्यू ln 2 बाई 20 रख देते हैं. और यहाँ पे हमें 0 to t करना है dt. और यहाँ पे बच्चों थीटा लेना है. व्हेन थीटा इज़ 80, t वॉज 0, एंड व्हेन t एट t हमें जो टेम्परेचर है वो फाइंड करना है 40 मिनट्स आफ्टर ओरिजिन. ओके, हमें t 40 लेना है और टेम्परेचर बताना है. सो यहाँ पे हम t 40 ले लेते हैं और टेम्परेचर थीटा ले लेते हैं. सो वी हैव टू फाइंड थीटा आफ्टर 40 मिनट्स फ्रॉम द ओरिजिनल. सो यहाँ पे फाइनली जो वैल्यू आ रही है आप देखें, ln ऑफ थीटा माइनस 40 डिवाइडेड बाई ln a माइनस ln a b होता है ना, तो a बाई b. ln a माइनस ln b इज ln a बाई b. सो इट इज़ दिस बाई 80 माइनस 40. ऑलराइट, एंड दिस इज व्हाट माइनस ln 2 इंटू 40 बाई 20. तो यहाँ से हमें मिल रहा है थीटा इज इक्वल टू 40 प्लस 2. So this is coming as ln of minus ln of 4. ऑलराइट, सो इसको हम सीधा कह सकते हैं कि थीटा माइनस 40 इज इक्वल टू 40 टाइम्स 1/4. ऑलराइट, so that is 10. So theta is coming as 50 degrees Celsius. तो ये आंसर होगा फाइनल इस क्वेश्चन के. ठीक है, सो आई थिंक यू गॉट द सोल्यूशन. तो कमिंग टू हीट फ्लो अक्रॉस एन एरिया, इस यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ पाइप. मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन. इनर सेक्शन जो है इसका एक हॉलो पाइप है जिसका इनर एरिया जो है, इनर रेडियस कह लें 10 है, या इनर डायमीटर 20 है. यहाँ लिखा होगा पाइप 20 सेंटीमीटर डायमीटर. और इसका जो एक कह रहा है कि इज प्रोटेक्टेड विद अ कवरिंग 5 सेंटीमीटर थिक. मीन्स 5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस हो गया. और टोटल जो आप कह लें कि जो रेडियस है फ्रॉम सेंटर आउटर मोस्ट जो सरफेस है वो हो जाएगा 10 + 5 15. ओके, इनर मोस्ट जो सेक्शन है उस वहाँ पे टेम्परेचर 150 गिवन है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना. कंटेन स्टीम एट 150 डिग्री से फिक्स है ये. और आउटर मोस्ट पे 40 गिवन है. ठीक है, तो आपको इसमें पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं. द रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया. रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस एन एरिया, रेट ऑफ हीट फ्लो को मैं मान लेता हूँ Q जो है प्रोपोर्शनल है, कह रहा है कि टू द एरिया मतलब सरफेस एरिया जिसके थ्रू ये क्रॉस कर रहा है. ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड किसके रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस. ये बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि क्रॉस किसी एरिया को जब आप क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो उस मोमेंट पे जो भी सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वैसे देखा जाए तो क्या होगा 2 पाई, जैसे सेंटर से x जैसे ये x है, देखिए ये x है. सो x डिस्टेंस पे सेंटर से जो क्रॉस सेक्शन होगा सरफेस एरिया होगा 2 पाई x इंटू इसका लेंथ, टोटल लेंथ मान लो L मान लेते हैं. ठीक है, तो L हो गया. और एट दैट मोमेंट मान लो थीटा भी देखो इनर का टेम्परेचर 150 डिग्री सी, आउटर का 40 डिग्री सी है, तो किसी भी x पे डिफरेंट x पे ना डिफरेंट टेम्परेचर होगा. तो थीटा मान लेते हैं जनरल टेम्परेचर किसी डिस्टेंस x पे. तो ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया इट इज क्रॉसिंग एंड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज d थीटा बाई dx विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस नॉर्मल टू द एरिया. ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल है. ये कह रहा है थीटा इज द टेम्परेचर एट x.
तो यहाँ पे बेसिकली हमें थीटा एट यहाँ हाफ वे का टेम्परेचर बताना है, ये बताना है, ठीक है। कैसे क्लियर करें क्वेश्चन को, देखिए। सो यहाँ पे अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ये एक चीज़ और बता दूँ मैं, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब पूरा टाइम बीतने के बाद एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन Q इज़ फिक्स्ड, Q इसका मीनिंग यही है, Q फिक्स्ड है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में Q फिक्स होगा, Q कांस्टेंट हो जाएगा, एक हीट फ्लो का जो रेट है वो फिक्स हो जाता है। तो उस सिचुएशन में बताना है, हालांकि Q जो था वो था क्या था, एंड डी थीटा बाई डी थीटा इज रिड्यूसिंग। देखिए इनर अब 150 आउटर 40 डिग्री ही है, यानी आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, एक्स बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर घट रहा है, तो डी थीटा बाई डी एक्स जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी है। तो Q हम कह सकते हैं कि माइनस ऑफ के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और वैल्यू ऑफ के इज गिवन। देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट होती है नहीं, कई बार नहीं पड़ती रिक्वायरमेंट। माइनस के सरफेस एरिया 2 पाई एक्स एल इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। नाउ यहाँ से आ जाएगा Q टाइम्स डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2k पाई एल डी थीटा। अब लिमिट्स क्या है, थीटा जब इनर मोस्ट 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा एक्स क्या था, एक्स था 10, इनर मोस्ट जो पॉइंट है आपका 10 है, एक्स यानी रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एंड व्हेन थीटा इज 40 डिग्री आउटर मोस्ट इट इज 10 + 5 15। ये आ गया एक तो रिलेशन। दूसरा रिलेशन आप देखिए एक बार और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, डी एक्स सो दैट की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो कट जाएं, डी एक्स बाई एक्स, और इनर मोस्ट पे हमारा ओके लिमिट्स में लगाता हूँ 2k पाई एल और डी थीटा, थीटा इनर मोस्ट का 150 पे ये 10 है x, और हमें मिडवे पे चाहिए यानी 12.5 पे चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे थीटा क्या है वो हमें बताना है, तो यही क्वेश्चन है। डिवाइडिंग द टू above two relations, what will you get? So ये आ जाएगा ln 1.5। अच्छा, और डिनोमिनेटर में चलो पहले राइट वाले को लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ ln ठीक है 1 पॉइंट लेफ्ट वाले लिखते हैं 15/10 बाई ln 12.5/10 means 5/4 इज इक्वल टू आ गया 40 माइनस 150 अपॉन, बेसिकली माइनस के साथ लगा देते हैं, तो 150 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 150 माइनस थीटा। सो थीटा की वैल्यू फाइनली जो आ जाएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 150 माइनस 150 माइनस 40 इज 110। सो यहाँ पे आना चाहिए फाइनली 150 माइनस 110 इंटू लॉग ऑफ 5/4 1.25 ऊपर आएगा, ln of 1.25 divided by ln of 1.5, all right 1.50। so ये फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड व्हेन यू कैलकुलेट इट प्रॉपरली तो एज मतलब आई कैन रिमेंबर इसका आंसर कुछ 90 डिग्री या 89.5 डिग्री के अराउंड आएगा, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कवर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव डीके प्रॉब्लम। रेडियो एक्टिविटी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। यूरेनियम डिसइंटीग्रेट्स एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो इसमें फिर से हम अज्यूम कर लें, लेट द अमाउंट प्रेजेंट at time t is amount of uranium is m, ठीक है।
सो इसमें जो क्वेश्चन गिवन है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dm बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ m हालांकि डिक्रीज कर रहा है, सो विल बी माइनस ऑफ km सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम इंडिकेट कर लेते हैं, dm बाई m इज इक्वल टू माइनस kt, और यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन कर दें बच्चों, तो व्हेन k dt हाँ माइनस ऑफ k dt, सो व्हेन वी गो फॉर इंटीग्रेशन, वैल्यू ऑफ k हम पहले निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ k के लिए इंफॉर्मेशन आ गई, m1 m2 अमाउंट्स ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट एट t1 t2, तो t1 पे m1 है और t2 पे जो है वो m2 है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखो यहाँ पे फाइनली हमसे हाफ लाइफ ऑफ द यूरेनियम पूछा गया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ, मतलब कितने टाइम के बाद इसका अमाउंट आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ओरिजिनल से। हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पे क्या मिलता है वो देखते हैं। सो यहाँ से हमें पहले तो k की वैल्यू मिल गई, देखिए ln ऑफ नेगेटिव साइन है राइट में, तो उस हिसाब से m1 ज़्यादा है मान लेते हैं ना, तो जैसे इनिशियली ज़्यादा धीरे धीरे घट रहा है ना, सो ln ऑफ m1 बाई m2 माइनस साइन कंज्यूम कर लिया अपॉन t2 माइनस t1, तो ये हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ के लिए क्या करेंगे, दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं, dm बाई m इज इक्वल टू माइनस के dt, और t0 और t हाफ मान लेते हैं, t हाफ बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, और t इक्वल टू 0 पे अमाउंट m0 था, और है ना, और हाफ लाइफ पे m0 बाई 2 हो गया, इनिशियल अमाउंट m0 मान लिया गया। सो यहाँ से बच्चों फिर जब हम t हाफ की वैल्यू निकालेंगे, t हाफ क्या आएगा, वो आ जाएगा ln2 बाई k, और k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। सो इसका फाइनल आंसर t2 माइनस t1 इंटू ln2 डिवाइडेड बाई ln ऑफ m1 बाई m2। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यही इसका t हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है, हाफ लाइफ पीरियड। सो अ सिंपल क्वेश्चन। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट, concentration of gas in a room। सो यहाँ पे लास्ट हमने देखा था रेडियो एक्टिव डीके, यहाँ पे देखिए एक नया सिचुएशन। सपोज अ रूम कंटेनिंग 1200 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज ओरिजिनली फ्री ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इज बेसिकली अ टॉक्सिक गैस, हार्मफुल होता है ज़्यादा अगर अमाउंट आ जाए। बिगनिंग एट t इक्वल टू 0 स्मोक कंटेनिंग, स्टार्ट में द रूम इज फ्री फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब क्या किया हमने, बिगिनिंग एट t इक्वल टू 0 स्मोक कंटेनिंग 4% कार्बन मोनोऑक्साइड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रूम एट द रेट ऑफ 0.1 मीटर क्यूब पर मिनट। 4% कार्बन मोनोऑक्साइड उसके अंदर है, जो भी गैस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्मोक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली ये जो 4% है इसका मीनिंग है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड का 4% लिखा है, दैट इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। तो वॉल्यूम बाई 4% जो है वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। एंड द वेल सर्कुलेटेड मिक्सचर इज अलाउड टू लीव द रूम एट द सेम रेट, मतलब 0.1 मीटर क्यूब पर मिनट। इससे बाहर भी जा रहा है, मतलब रूम का वॉल्यूम एकदम फिक्स है हर टाइम पे 1200 मीटर क्यूब। एक्सटेंडेड एक्सपोजर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन एज मच एज 0.00012 इज हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी, मतलब इसका वॉल्यूम जो है अगर 0.00012 आ जाए, ठीक है। देखिए स्टार्ट में द रूम इज फ्री फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्मोक आप इंट्रोड्यूस करते जा रहे हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। कितने वॉल्यूम पे हार्मफुल है, 0.00012 पे। तो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम एट विच दिस कॉन्सेंट्रेशन इज रीच। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.00012 ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। तो इसमें मान लेते हैं लेट एट
एनी टाइम t, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे. द अमाउंट, द वॉल्यूम, बेसिकली अमाउंट मतलब यहाँ वॉल्यूम है, अमाउंट हम वॉल्यूम अमाउंट की बात कर रहे हैं. द वॉल्यूम एब्सोल्यूट जो अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड in the room comes as suppose m. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन m क्या आएगा, चेंज इन m in very small time interval, चेंज इन m इन डेल्टा टी टाइम आप कह सकते हैं. तो जितना इंट्रोड्यूस कराए, जितना इंडक्ट कराए, माइनस अलाउड टू लीव. देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मिक्सर इज अलाउड टू लीव एट द सेम रेट, अलाउड टू लीव. तो अगर देखा जाए यहाँ पे हम बोलें डेल्टा एम, डेल्टा एम जो है वो आएगा when delta t tends to 0. तो डेल्टा टी टाइम में देख रहे हैं कितना अमाउंट चेंज आया. तो ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम था 4%, तो 4/100 आ गया. इतना हमने उसमें डाला है इंटू 0.1. तो 4% था कि पर मिनट 0.1 मीटर क्यूब पर मिनट. एक मिनट में 0.1 मीटर क्यूब हम स्मोक डाल रहे हैं, जिसमें 4% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% ऑफ 0.1 मीटर क्यूब पर मिनट इनटू डेल्टा टी कर दिया. तो इतना अमाउंट इसमें एडिशनली ऐड होगा. सीधा है, सिंपल इक्वेशन रिलेशन है. माइनस कितना बाहर आया, तो बाहर आते वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन है रूम का, क्योंकि रूम का जो है सर्कुलेटरी मिक्सचर है, उसको वेंटिलेटेड करके यूनिफॉर्म मिक्सचर बाहर निकल रहा है. तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वॉल्यूम बाई एम अपॉन टोटल वॉल्यूम इज ऑरिजिनली 1200 1200, ये फिक्स है, इंटू 0.1 इंटू डेल्टा टी, सेम डेल्टा टी, ऐसे करेंगे. तो अब यहाँ पे अगर आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दें और डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दें, तो डी एम बाई डी टी पर यूनिट टाइम जो रेट ऑफ चेंज इन एम है, दैट इज 4, ठीक है, 4/100. इसको हम ऐसा कर सकते हैं 4/1000 माइनस m/12,000, राइट. और 12,000 मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ dm अपॉन ये 12,000 मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू 4 48 आएगा, माइनस m आएगा. इसको हम इंडिकेट कर लेंगे. ऑलराइट, ठीक है ये. हाँ, एंड dt एंड इंटीग्रेशन बच्चों कहाँ से कहाँ तक, व्हेन t इज एंड इसमें t 0 पे बताइए कि जो m था वो 0 था. ऑलराइट, और कितने कह रहे हैं कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम एट विच द कॉन्सेंट्रेशन दिस कॉन्सेंट्रेशन इज, कि कौन से कॉन्सेंट्रेशन की बात चल रही है. तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन फाइनल है वो बेसिकली क्या है, वो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है कितने टाइम में आएगा वो जो m की वैल्यू है, मैं बात करूं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो m है, m एट t जो हमें पाना है m फाइनल, दैट इज 0.00012 इंटू 1200. ये अमाउंट ये है, मतलब वॉल्यूम ऑफ, एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज 0. आई थिंक 144 ये आएगा. 12 into 12 144 and we have to take so 2 zeros cancelled and 3 places आएंगे, डेसिमल जो लास्ट डिजिट पहले 3 लगाने, 0.144. ओके, करेक्ट. सो यहाँ पे हमें लिखना है 0.144. अब इसको इंडिकेट कर देते हैं.
सो इट विल बिकम 12. सो टी की वैल्यू जो फाइनली आ रही है, हम टी की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं अब. सो टी की वैल्यू बच्चों जो आ रही है वो आ रही है 12,000 into putting the, so log is the base, ln आ गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में 48 mod of 48 minus m. so when m is 0 it is 48. तो इसमें 0.48 minus 0.144 डिवाइड, अच्छा माइनस साइन बाहर कर दें बिकॉज व्हेन यू इंटीग्रेट इट ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ m इज नेगेटिव, सो माइनस आएगा अहेड, डिवाइडेड बाई 48. सो वी कैन मेक सम, सो यही आंसर है. एंड वी कैन मेक सम अप्रॉक्सीमेशन है, जैसे कि 0.144 इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी अपॉन 48 है, तो 1 log of 1 minus x को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं आप विद माइनस एक्स, है ना. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ log ऑफ लाइक एक्सपेंशन ऑफ log of 1 plus x इज व्हाट, x minus x square by 2 plus x cube by 3. तो if x is very close to 0, so log of 1 minus if something is very close to 0, 1 minus x को minus x लिख सकते हैं आप. So it is minus of 0.144 divided by 48. So यहाँ से इसकी जो है t की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और जो वैल्यू है वो बन के आ रही है प्लस हो गया ये 12,000 इंटू, सो इसमें मैं जीरोज हटा देता हूँ, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 12 इंटू 144 बाई 48, एंड दैट इज 12 बाई 144 बाई 4, दैट इज 36 मिनट्स इज द अप्रॉक्सीमेट, ऑलमोस्ट 36 मिनट में वो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा जो कि हार्मफुल है. ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन एंड सॉल्यूशन प्रॉब्लम. सो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये सिमिलर है क्वेश्चन लास्ट जो हमने अभी रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का डिस्कशन करा. इसमें सिमिलर क्वेश्चन है बट ऑन अदर ग्राउंड. ठीक है, इसके अंदर भी एक टैंक है, जैसे कंसिडर टैंक विथ इनटेक एग्जिट पाइप. सपोज टैंक इस तरह क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे सोचना है हमें. सपोज टैंक कंटेन्स इनिशियली यू लीटर ऑफ वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन विथ m kg ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. इनिशियल जो है यहाँ पे, इनिशियली क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास वो लिख लेते हैं. इनिशियली वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो है u, एंड सॉल्ट कंटेंट वो गिवन है m. इसमें ये वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है उसमें टोटल वॉल्यूम u है और सॉल्ट कंटेंट m पड़ा हुआ. फर्दर सपोज दैट q liters of solution containing n kg of salt per liter is runs into the tank. Similar question last की तरह, per minute and the mixture is kept uniform by stirring, runs out of the tank at the same rate, at the rate r liter. इसमें रेट सेम नहीं है, रेट अलग अलग है. देखिए q lit so q liters पर मिनट जो हमने इनटेक डाला था, है ना, इंट्रोड्यूस करा था, बट 8 लीटर पर मिनट से जा रहा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये एक चेंज है. सो वाइडर पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेशन है यहाँ पे. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट आफ्टर टी टाइम. तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि लेट आफ्टर टाइम टी सॉल्ट amount is in the tank is S. ठीक है, तो चेंज इन S की बात करेंगे इन डेल्टा टी टाइम. इसमें कितना, देखिए हमने कितना इंट्रोड्यूस करा है, देखो बच्चों फिर से हमने इंट्रोड्यूस करा है q लीटर पर मिनट एंड n kg सॉल्ट पर लीटर. तो क्या हो गया, ये n इंटू क्यू हो गया,
n kg पर लीटर एंड q लीटर पर मिनट इनटू डेल्टा टी कर दिया, अज्यूमिंग कि डेल्टा टी हम टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं। माइनस करेंगे, कितना हमने बाहर निकाल लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन निकलते वक्त क्या है, अमाउंट तो s है एट टाइम t, और कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा ना, तो यूनिफॉर्म रखा गया है बाय स्टेयरिंग। तो वॉल्यूम क्या है एट दैट टाइम, आफ्टर टाइम t वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम इनिशियल तो आपका ये था, तो आपका वॉल्यूम जब हो जाएगा आई मीन आफ्टर टाइम t u प्लस कितना इंट्रोड्यूस करा वॉल्यूम, हमने इंट्रोड्यूस करा था q लीटर पर मिनट, q एंड r लीटर बाहर कर दिया, इंटू t करेंगे, पर मिनट था ना तो इंटू t कर दिया, तो ये वॉल्यूम हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, इंटू कर देंगे r लीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये वॉल्यूम, ये तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ऑलराइट, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन पार्ट इनटू r, ठीक है, इनटू dt डेल्टा t। r लीटर पर मिनट था, यहाँ पे q लीटर पर मिनट था, तो यहाँ पे q मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे r। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो, यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन रहा है हमारा, आफ्टर डिवाइडिंग बाई dt, ds बाई dt, डेल्टा टी टेंस टू 0 करेंगे, एन क्यू माइनस एस, एन क्यू माइनस, अच्छा मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ एस वाला पार्ट, बिकॉज दिस सीम्स टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आर अपॉन यू माइनस क्यू माइनस आर इंटू टी इंटू एस इज इक्वल टू एन क्यू, ऑलराइट, ये आ रहा है। सो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये हो जाएगा ई रेज पावर इंटीग्रल ऑफ आर अपॉन यू माइनस, यू प्लस था यहाँ पे, सॉरी, हाँ, यू प्लस क्यू माइनस आर इंटू टी डी टी, एंड दैट वुड कम एज, आई थिंक, जैसे आर तो कांस्टेंट है, आर फिक्स है, और इंटीग्रेशन में सो ई रेज पावर आर अपॉन क्यू माइनस आर एज द कोफिशिएंट ऑफ टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एल एन ऑफ यू प्लस क्यू माइनस आर इंटू टी, ये हो गया, एंड दैट इज इन फैक्ट सिंपली u प्लस क्यू माइनस आर इंटू टी होल रेज पावर आर अपॉन क्यू माइनस आर। सो थोड़ा सा ये जो है एक्सप्रेशंस बड़े आ रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बट हमें इसी से पेशेंस रखना है, ऐसी ही बात बनेगी। देखिए, सो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो जाएगा s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी, एंड यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा हमें बेसिकली। सो लिमिट हम यहाँ पे लगाएंगे, जैसे कि 0 टू t लगा रहे हैं, आफ्टर टाइम t चेक करना ना, और s एंड आई एफ में भी देखा जाए तो टी इन्वॉल्व है, तो टी इक्वल टू 0 पे एस क्या था, एस वॉज एम, और ठीक है, और टी इक्वल टू टी पे हम एस को एस ले रहे हैं, ठीक है। इसको फटाफट इंडिकेट कर लें, डेफिनेट इंडिकेशन किया गया। सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसी चीज़ को दोबारा से लिखा है मैंने, देखिए आई एफ याद रखिएगा, u प्लस क्यू माइनस आर इंटू टी, आर रेज पावर आर अपॉन रेज पावर आर अपॉन क्यू माइनस आर, ये लिखा है आर अपॉन क्यू माइनस आर। तो अब देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बच्चों हमें वही रखना पड़ेगा, 0 t0 एस एम टी टी एस एस, और यहाँ 0 टू t करना है। अच्छा, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन, राइट का इंटीग्रेशन करते हैं बाद में, पहले लिमिट रखते हैं लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जब आप लिमिट रखोगे टी को टी, तो ये तो ऐसे ही आ गया, एस है, और u प्लस क्यू माइनस आर इंटू टी होल रेज पर आर अपॉन क्यू माइनस आर लिख देते हैं,
और यहाँ पे माइनस करेंगे जब s को m लिखेंगे और t को 0 लिखेंगे, t 0 लिखते हो तो यहाँ पे m इंटू यू रेज टू द पावर r अपॉन q माइनस आर। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इट राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन आएगा u प्लस क्यू माइनस आर इंटू टी होल रेज पर r अपॉन क्यू माइनस आर प्लस 1, और इसको प्लस 1 करोगे तो r कट जाएगा, ऊपर q आ जाएगा, तो q अपॉन बेसिकली q माइनस आर आ रहा है। और फिर इंटीग्रेशन पार्ट में एज t कोफिशिएंट ऑफ t इज q माइनस आर, इट मस्ट बी q माइनस आर हेयर, तो दिस टू गॉट कैंसल्ड और यहाँ पे q इससे कट जा रहा है और यहाँ पे लिमिट चलाना है 0 टू t। अब t पे वैल्यू कितनी बन रही है इसकी, t पे वैल्यू इसकी बन रही है सो n इंटू t पे वैल्यू तो यही रखेंगे u प्लस क्यू माइनस आर आर टी होल रेज पर r अपॉन r नहीं, अभी यहाँ q आ जाएगा, सो q अपॉन q माइनस आर एंड माइनस करेंगे when t is 0, when t is 0 it is n इंटू n, तो बाहरी था तो हमने कॉमनली मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई कर बोथ द टर्म्स, एंड when t is 0 it is u रेज पर u t 0, so u रेज पर r तो कट गया q अपॉन q माइनस आर। ऑलराइट, सो ये आ गया पावर में। अब देखिए यहाँ पे हम फर्दर s की वैल्यू हम लिखें तो u प्लस क्यू माइनस आर इंटू टी, तो डायरेक्टली अब s अगर हम लिखें तो सीधा क्या आएगा देखते हैं। देखिए फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का s इज इक्वल टू डिवाइडिंग इट फ्रॉम इधर लेफ्ट टू राइट कर लेते हैं, तो r अच्छा m इंटू यू, ये जो टर्म है m इंटू यू रेज पावर r अपॉन क्यू माइनस आर, यू रेज पावर क्यू अपॉन आर माइनस m माइनस n आ रहा है राइट में, यहाँ भी सेम है। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक बार करके m माइनस एन, फर्स्ट टर्म में तो सेम ही आ रहा है q q। ओके, n इंटू u प्लस, सो ओके ये बेसिकली हमारा जो q माइनस आर इंटू टी और इनका जो डिफरेंस है, जो यहाँ पावर है और जो यहाँ पावर है, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है देखिए, इनका डिफरेंस 1 का है। तो जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों, व्हेन वी डिवाइड देम यू विल गेट दिस ओनली u प्लस क्यू माइनस ओनली द बेस, माइनस किया तो q माइनस और q माइनस, ठीक है। और इसके बाद हमें मिलने वाला है प्लस ऑफ m माइनस n और u r सेम है, u का पावर q, u का पावर q अपॉन 1 माइनस आर था यहाँ पे। अच्छा, तो इसको मैं अगर u के पावर पे लेके जाऊँ r अपॉन q माइनस आर, हाँ तो m माइनस n u आ जाएगा एक्स्ट्रा टर्म। देखिए इसमें u, इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ u इंटू यू रेज पावर r 1 प्लस है ना, 1 प्लस था, तो इसमें m एन एस एन u कर दिया इंटू यू रेज पावर r अपॉन q माइनस आर कर दिया। ऑलराइट, एंड बस ये है डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्योंकि r हमें सेम लग रहा था, ये वाला r लेना था, तो एक चीज़ मैं सीधा आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों ये जो चीज़ है ना, इसको अभी आप ऐसे ही मान के चलो, मतलब यहाँ +1 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पे r है +1 है और ये पावर है, एंड यहाँ पे भी r अपॉन क्यू माइनस आर +1 लेके ही चलते हैं। सो जब आप निकालेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या सो s इज n s हमने डिवाइड किया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेफ्ट में, s में जो मल्टीप्लाइड था यहाँ पे, सो u प्लस क्यू माइनस आर इंटू टी से डिवाइड किया है, तो हमें मिल गया u प्लस क्यू माइनस आर इंटू टी, सेम पावर कट गया, एंड ये आ गया प्लस m माइनस n u
ठीक है, और u रेज पावर r अपॉन q माइनस आर, और डिवाइडेड बाई आएगा u प्लस q माइनस आर रेज पावर r अपॉन q माइनस आर। तो ये पावर सेम है जो ऊपर दिख रहा है हमें, q माइनस आर इंटू टी है, सॉरी, q u प्लस q माइनस आर इंटू टी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, या इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं एन यू, चलो यू कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस क्यू माइनस आर बाई यू हर जगह आ रहा है तो यही लिख देता हूँ, इंटू टी प्लस एम माइनस एन यू इंटू यू बाई दिस, या पावर माइनस ले जाके करें तो 1 प्लस क्यू माइनस आर बाई यू इंटू टी, ठीक है, होल रेज पावर माइनस ऑफ आर अपॉन क्यू माइनस आर। आई होप यू गॉट दिस, है ना। तो ये चीज़ फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। सो लिटिल वर्ड लेंदियर बट सिमिलर है, कॉन्सेप्ट वही है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ज़्यादा था। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम थोड़े कुछ ज्योमेट्रिकल जो है ये एप्लीकेशन लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज, what is mean by orthogonal trajectory? The orthogonal trajectory of a given family of curve is defined to be family of curves each member of which cuts each member of the given family of curve orthogonally. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अगर मान लो देखा होगा, कुछ ऐसा सोचा है कभी कि जैसे फैमिली ऑफ सर्किल लेते हैं सेंटर्ड एट ऑरिजिन, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। आप और भी सर्किल्स बना सकते हो यहाँ पे, लाइक अंदर की तरफ एक ले लें, और एक फैमिली ऑफ लाइंस ले लें, कलर चेंज कर लेते हैं, थ्रू ऑरिजिन ले लें, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस। तो अब हम देख सकते हैं इस सिचुएशन में कि आप कोई भी मेंबर लो, जैसे दो फैमिली लिया है मैंने, ठीक है, इसमें कोई भी मेंबर देखो यहाँ पे, एनी मेंबर ऑफ एनी, टेक वन मेंबर ईच फ्रॉम द टू फैमिलीज एंड चेक द angle of intersection, it is always 90 degree, anywhere you can check. So यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्किल लिया गया जो आपका कर्व 1 है। देखिए नीचे मैंने पूरा सिचुएशन लिखा हुआ है, किसी पॉइंट x, y पे क्या हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि द स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, डायरेक्शंस 90 डिग्री पे हैं, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी बोलते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे अगर कर्व 1 आपका जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ले लें, आर इज द पैरामीटर, और कर्व 2 आपका यहाँ पे दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स, एम इज द पैरामीटर। अच्छा, तो ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन आ गया जब हमें पता लग रहा है कि द टू फैमिलीज आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। बट हमें पता कैसे चलेगा? सपोज वन ऑफ देम इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द सेकेंड वन। हाउ डू वी फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ऑफ सम गिवन फैमिली ऑफ कर्व? सो दिस इज द सिनेरियो। सो यहाँ पे जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया, देखो अगर कर्व C1 दिया, इसमें लैम्डा इज द पैरामीटर, वन पैरामीटर फैमिली की बात कर रहे हैं, जैसे कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। सो गिवन फैमिली आपका ये है, उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पैरामीटर वगैरह रिमूव करते हो, एलिमिनेट करते हो डिफरेंशिएट करके, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है गिवन फैमिली का। अब किसी भी पॉइंट x, y पे, x, y सेम है दोनों में, ठीक है ना। आपको क्या करना है, dy स्लोप ऑफ वन फर्स्ट कर्व इन स्लोप ऑफ सेकंड कर्व इज -1, तो आपको m2 हो जाएगा -1/m। तो जहाँ जहाँ m लिखा था यानी dy/dx लिखा था, वहाँ -1/dy/dx दैट इज -dx/dy लिख सकते हैं आप इफेक्टिवली, वो आपको रिप्लेस कर देना है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्थोगोनल फैमिली मिल जाएगा। फिर इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट द ऑर्थोगोनल फैमिली। तो यहाँ पे इस तरह से पूरा फ्लो चार्ट में, इसमें आपको वो भी इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट स्टेप में, फिर dx dy/dx को -dx/dy से रिप्लेस करके फिर हमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल फैमिली मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि अगर मान लो मैं C1 हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, देखिए मैं मिलेगा x + y dy/dx, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद हम इसमें चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, x - y dx/dy कर लेंगे और इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सो dx/x इज इक्वल टू
डी वाई बाई वाई आ रहा है करके, तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू, मतलब एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी ले लेते हैं, या एल एन एम ले लेते हैं, तो y इक्वल टू एम एक्स, एम इज़ द पैरामीटर, न्यू पैरामीटर। सो ये हमारा सेकेंड फैमिली आ गया, ऑर्थोगोनल फैमिली। तो यहाँ से हमने निकाला था फर्स्ट फैमिली। तो ये तरीका है, आपको बीच में क्या करना है, इंटरचेंज, आई मीन यू हैव टू रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस ऑफ डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जैसे हमने यहाँ पे किया। ओके, सो जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लें एक दो। इफ द स्ट्रीम लाइन path of fluid particles of a flow around a corner r xy equal to k is the parameter, different एक hyperbolic path है। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइंस। अगर आप फिजिक्स, जैसे कि आप फिजिक्स के कंसेप्ट को जानते हो तो अप्लाई यहाँ पे अगर आप सोच सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो हमें बेसिकली मैथमेटिकल पार्ट देखना है, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू के का ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी बताना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट। देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ अगले स्टेप पे क्या करना है आपने, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई कर देना है, प्लस वाई इक्वल टू 0। के तो अपने आप एलिमिनेट हो गया, हमें एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर इसको सॉल्व कर देना है। अब हमें आना है, हम लिखेंगे सो माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को वेरिएबल सेपरेट उससे कर लेते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म से कर लेते हैं। सो विल गेट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, चलो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, इज इक्वल टू सी आ गया, या सी बाई 2 कर लो, 2 कट जाए। तो यहाँ पे फाइनली बच्चों तो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी है, दैट इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ भी माइनस कर सकते हो आप। अच्छा है कि एक्स स्क्वायर हम वो कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी टाइप। तो ये भी एक हाइपरबोलाई का ही फैमिली है, तो जिसके जो एक्सीज हैं वो अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सीज हैं, और एसिम्टोट्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हैं, जबकि फर्स्ट फैमिली का एसिम्टोट्स थे कोऑर्डिनेट एक्सीज। ओके, तो ये इस फैमिली का जो है हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू सी। इसके एक किसी भी एक मेंबर को ले लो तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री आएगा। इस तरह के सवाल मिलेंगे। टेक सम मोर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल, अच्छा लास्ट में, हाँ ठीक है, के एंड सी। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ऑफ दीज। तो इसमें फटाफट आप वर्क कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो फर्स्ट है तो लाइन है, पैरेलल लाइन से, के इज द पैरामीटर इन ईच केस। ओमेगा सेकंड केस में ओमेगा फिक्स है आपका, तो ओमेगा के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आपने क्या किया, माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 3 कर दिया, ठीक है, रिप्लेस इंटरचेंजिंग और रिप्लेसिंग डी वाई डी एक्स में माइनस डी वाई डी एक्स बाई डी वाई। अब ये आ गया सीधा, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, वेरिएबल सेपरेट मतलब अलग अलग कर लें तो भी ये आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी कर लेते हैं यहीं पे, इज इक्वल टू 3y। तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो, x प्लस 3y इज इक्वल टू सी। ये ऑर्थोगोनल फैमिली आ गया हमारा आंसर। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बेसिक से कि एक जैसे कि लाइन है हमारे पास 3 स्लोप का, ऐसे ऐसे करके, और एक लाइन है हमारे पास -1/3 स्लोप का। ये परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, कोई भी आप केस बना लो, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, कहीं पे भी यू कैन चेक। तो ये आ गया ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। सेकेंड केस में देखिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स सिंपली इज इक्वल टू के ओमेगा e raised power omega x. Now k is the parameter, so we will have to eliminate k. So इसको आप सीधा लिख सकते हो omega y directly. This is a differential equation. Now we'll have to next में हमें interchange करना, minus dx by dy is equal to omega y. Now we will integrate it accordingly, जैसे कि यहाँ पे माइनस डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई डी वाई इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा वाई स्क्वायर बाई 2।
तो या c/2 कर दूं यहाँ पे, तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 2x प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू c। सो दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। इस तरह से फटाफट आप किसी भी क्वेश्चन में, तो पहले आपको ध्यान रखना है कि जो पैरामीटर रिमूव करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उसको dx/dy को माइनस dy/dx को माइनस dx/dy से रिप्लेस करना है, और फिर देन यू हैव टू सॉल्व इट अगेन टू गेट द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे इसमें मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। सो e रेज पावर x का डिफरेंशियल e रेज पावर x हो गया, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, प्लस e रेज पावर x इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें मैं ई रेज पावर एक्स चाहो तो आप यहाँ से हटा दो। ओके, सो इसमें अभी साइन वाई माइनस हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ से हमें मिला, इसको हम कंप्लीटली यहाँ सॉल्व कर लें। ओके, सो हमें मिला डी वाई बाई क्या मिलेगा, कॉस वाई ऊपर साइन वाई है, ओके, इज इक्वल टू डी एक्स। अच्छा, ये नीचे सो इसका tan वाई का ln sec वाई होता है, तो माइनस ऑफ ln cos वाई लिखते हैं, और x प्लस सी आ रहा है। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिल रहा है, cos वाई इज ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज पावर माइनस सी, ये आ गया। सो ई रेज पावर एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल ई रेज पावर माइनस सी, दैट इज हम लिख सकते हैं लैम्डा। दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ऑफ, आप समझ पा रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, कैसे निकाल सकते हैं इजिली। ई रेज पावर एक्स साइन वाई इक्वल टू के का ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ई रेज पावर एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा इज अ पैरामीटर। एक और बढ़िया एग्जांपल देखिए, इसमें मैं, ये एक सर्किल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का सर्किल है, इसमें वेरियस इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, ऐसे बना सकते, टचिंग वाई एक्सिस। और इसमें अगर आप देखें ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज ना, इसमें इसी तरह के सर्किल आते हैं, बट वो टच कर रहे होते हैं एक्स एक्सिस को। इसमें आप देख सकते हो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है हर जगह पे टैंजेंट के बीच। टैंजेंट जो इसका है फर्स्ट फैमिली का है। अब हम इसका ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फाइंड कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से फाइंड करेंगे बच्चों। तो अभी इसके डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू ए, और फिर इसको हम यहाँ पे ए को एलिमिनेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रॉम द ओरिजिनल इक्वेशन ए इंटू एक्स। ए हमने अभी भी फाइंड किया, ए वी हैव टू एलिमिनेट, सो इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 2x से मल्टीप्लाई करते हुए एक्स वाई वाई डैश, तो ये हो गया। और यहाँ पे आप 2 कैंसिल कर सकते हो, ये ऐसे ना। आप इसको अब चेंज करोगे और क्या करोगे, लिखोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये नए वाले ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है, y इंटू डी एक्स बाई डी वाई, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलने वाला देखिए, या सो इट इज़ वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2xy डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2xy डी एक्स। तो अब इसमें फिर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो इंटीग्रेशन इज वाई, राइट हैंड साइड में आएगा माइनस ऑफ, इट इज द एग्जैक्ट से कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट डी ऑफ माइनस ऑफ डी ऑफ आई मीन एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर बाई वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लस सी लिख सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे जो हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स या बी एक्स, कुछ भी मतलब ऐसे लिख दो आप। तो ये कौन पैरामीटर है यहाँ पे, सी इज़ द पैरामीटर। तो यहाँ देखिए सी एक्स नहीं सॉरी सी वाई आ रहा है,
सो सी वाई लिखना चाहिए मुझे, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि आप देखो किस तरह के सर्किल मिलेंगे जो 90 डिग्री पे कट करें, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। और दूसरा जो पॉइंट होगा यहाँ भी 90 होगा इनफैक्ट, ठीक, किसी भी मेंबर को ले लीजिए आप। तो ये था। सिमिलरली वी कैन टेक वन मोर। ओके, सो फाइंड द ऑरिजिन ट्राइजेक्टरी ऑफ सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल एंड कोएक्सियल पैराबोलास फोकस एट ऑरिजिन एंड एक्सिस एज एक्स एक्सिस। तो हमें क्या करना है, फोकस ऑरिजिन पे रखते हुए एक्सिस एक्स एक्सिस लेना है। तो ऐसे पैराबोलास मान लो कि ऑरिजिन ये फोकस है आपका, तो कहीं पे भी होगा वर्टेक्स मान लो -a,0 पे लिया है, ए पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। एक कोई फैमिली जैसे इस तरह का मेंबर ऐसे ले लिया, तो -a,0 पे सपोज आपने यहाँ पे कोई फैमिली लिया, ए वेरिएबल है, ए कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस मेंटेन करना और फोकस ये डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स एंड फोकस हम ए ले रहे हैं। तो फोकस फिक्स है ऑरिजिन आपका। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए, तो ए हो गया और लेटेस्ट रेक्टम 4a है, तो इसका शिफ्टिंग से हम लिख सकते हैं सीधा सीधा। इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स, और राइट ओपन मैंने लिया है तो x प्लस a, ये हो गया फैमिली। a इज द पैरामीटर फैमिली ऑफ कॉन्फोकल एंड कोएक्सियल, एक्सिस सेम है, फोकस सेम है, a डिफरेंट ले सकते हैं। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसमें ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल रहा है 4, 2 कट किया, सो 2a मिल गया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं a लिख सकता हूँ वाई डैश बाई 2। अब मैं a वापस रखने वाला हूँ इसके अंदर, तो लिखूँगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y डैश इज 4a एंड x प्लस a वाई डैश बाई 2। तो अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना, अच्छा इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। y जैसे हम कैंसिल आउट करें और यहाँ पे लिखें 2x y डैश प्लस y, या y कैंसिल हो गया, y डैश का स्क्वायर। नाउ मेकिंग द ऑर्थोगोनल फैमिली differential equation. For that हम रिप्लेस करेंगे y डैश को -1/y डैश से, तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, y डैश स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 लेफ्ट में लेके आए y डैश माइनस y इक्वल टू 0। ऑलराइट, नाउ विल सॉल्व दिस। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन बना है हमारे पास। सो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें y डैश जब आप फाइंड करोगे तो 2 से डिवाइड करते हुए -x प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y, तो ये आ जा रहा है। अब एक चीज़ देखिए, जब जैसे हमने ये जो फैमिली लिया है, इसमें जब ऑर्थोगोनल कोई मान लो यहाँ पे टैंजेंट बनाता हूँ, जैसे किसी पॉइंट पे आपने x, y पे टैंजेंट बनाया पी x, y, तो यहाँ पे जैसे 90 आया, ठीक है। तो अब ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी कुछ होगा, देखते हैं क्या आता है। तो उस पर क्या होगा कि जो स्लोप होगा, जैसे कि इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं जब y पॉजिटिव है, तो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के करस्पॉन्डिंग हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि प्लस लूँ या माइनस, इसमें एक एम्बिगिटी आ रही है ना जब क्वाड्रेटिक के रूट लिखे। तो y पॉजिटिव पे फॉर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी आपका जो स्लोप जैसे ओरिजिनल का दिख रहा है y पॉजिटिव पे पॉजिटिव y डैश, तो ऑर्थोगोनल का निगेटिव आएगा, y डैश निगेटिव आ रहा है। और y निगेटिव पे सिमिलरली जब आप ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की बात करेंगे, नॉर्मल जैसे होगा ना यहाँ पे, तो वो पॉजिटिव आ रहा है, तो y निगेटिव पे y डैश पॉजिटिव आना चाहिए फॉर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी, फॉर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि y इंटू वाई डैश निगेटिव आना चाहिए। तो y इंटू वाई डैश जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, y इंटू वाई डैश जब मैं लिख रहा हूँ तो निगेटिव आना चाहिए। उस हिसाब से ये बना हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, माइनस लेंगे, प्लस नहीं लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकली x तो छोटा ही होगा ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी थी
क्योंकि y इंटू वाई डैश जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। अब आप जिसको जैसे फटाफट डिफरेंस इंटीग्रेट करें, एग्जैक्ट से ट्राई कर सकते हैं, डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसको फिर हम लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई करते हुए एक्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2 मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 2 डी एक्स कर देते हैं। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट, और 2 भी कट जाएगा इनफैक्ट, तो ये बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज 2 रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, 2 कट गया, प्लस सी, ऑलराइट। तो ये आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर भी कट कर सकते हो। फाइनली हमें फिर से एक पैराबोला आ रहा है, वाई स्क्वायर, दिस इज बेसिकली पैराबोला अगेन। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मिल गया हमें माइनस 2c माइनस 2c इंटू एक्स माइनस सी बाई 2। तो c बाई 2 को जैसे मैं अगर b नाम दे दूं तो मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी को 2 भी ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल, तो माइनस 4b एक्स माइनस b आ रहा है बच्चों। एक तरह से जैसे b पॉजिटिव लेके, जैसे मैंने अगर a पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे पैरामीटर ये है कि यहाँ पे b आपका फिर b पॉजिटिव है, और ठीक है। तो इस तरह ये किस तरह के पैराबोला है देखिए आप, यहाँ पे इस तरह का एक्चुअली आएगा पैराबोला जो इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ये इस तरह के पैराबोला, ठीक है ना। इस तरह के फैमिलीज आएंगे, जो लेफ्ट ओपन है तो उसको 90 डिग्री, तो दिखने में लग रहा है कि सेम फैमिली है, बट एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ साइन ऑफ पैरामीटर, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। सो ये था इसके अंदर, एंड नेक्स्ट आते हैं। सो लास्ट यहाँ पे आ गए क्लॉरेट्स एप्लीकेशन इन क्लॉरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना। क्लॉरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको शायद आइडिया हो कि एक फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p आ जाए, p इज एक्चुअली dy बाई डी एक्स, तो ये ऑर्डर तो 1 है इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन डिग्री या हो सकता है डिग्री डिफाइंड ना हो या डिग्री 1 या उससे ज़्यादा हो। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, इंटीग्रल या जनरल सॉल्यूशन बोले, इंटीग्रल सॉल्यूशन इज सिंपली y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी। हमें बस p को c से रिप्रेजेंट, c इज अ पैरामीटर। ये कैसे आता है, ये डिफरेंशिएट करके फिर हम सॉल्व करके पूरी इसका डेरिवेशन है, बट आप सीधा अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन, तो अगर आप उल्टा चलो तो सीधे सीधे दिख जाएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन आपको ये दूं कि ये एक फैमिली ऑफ कर्व है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, तो आप फटाफट क्या करेंगे, c इज ओनली पैरामीटर, c को एलिमिनेट करेंगे, बट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू c आ जाएगा। तो c को y डैश डालना है, तो c की जगह आपने dy बाई डी एक्स डाल दिया, तो ऊपर वाला ये इक्वेशन आ गया। इस तरह से आप उल्टा देखो तो फटाफट दिखता है। हालांकि क्लॉरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन के डिस्कशन में एक सिंगुलर सॉल्यूशन की बात होती है, और वो हालांकि कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता, वो इंटीग्रल सॉल्यूशन का ही एक एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक है, एक एनवेलप है। कई बार हम उसका डिस्कशन करते हैं, बट इस डिस्कशन में मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा उस चीज़ को। अभी हम सीधा देखते हैं कि पहले जो जनरल जो इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं वो क्या आते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन को विल इग्नोर है, ठीक है। देखते हैं अगर हो पाए तो किसी एक केस में वी कैन ऑल्सो चेक दैट टेंजेंट इज ड्रॉन। हालांकि वो जनरली पूछा नहीं जाता है आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन हम देखते हैं टेंजेंट इज ड्रॉन टू, मतलब जो भी आंसर आता है ना, y इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी इज बेसिकली ना एक टेंजेंट लाइन्स कह सकते हैं आप, एक फैमिली का है, उस का एनवेलप वही कर्व होगा जिसका टेंजेंट लाइन का फैमिली है एक तरह से। तो इसको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का तरीका वैसे ये होता है कि आप जो भी इंटीग्रल सॉल्यूशन आया है
उसको सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, और जो आएगा और जो जिसको आपने डिफ्रेंशिएट किया y = 6 + fc, दोनों से c को एलिमिनेट कीजिए, तो फिर आपको वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ c, और आप मतलब x और c में रिलेशन आएगा, तो c को x के टर्म में निकाल के जब c वापस रखेंगे तो एक नया एक सिंगल सा एक कर्व मिलता है। देखते हैं क्या है वो। वैसे हाँ, अभी जो हमने डिसाइड करा क्लाइडेट्स का जो मेन पार्ट है वो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि एक कर्व है, टैंजेंट बनाना है आपने, और जैसे जनरल आइडिया तो यही है टैंजेंट का कि कर्व लिया, टैंजेंट बनाया, पी x, y। टैंजेंट का इक्वेशन लिखें तो y - y = dy/dx x - x। तो जब आप पॉइंट A निकालोगे, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, टैंजेंट मीट कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस A एंड B पे, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉलोइंग वेरियस कंडीशन। पहले हार्मोनिक मीन OA OB का 1 होना चाहिए, दूसरा तो अलग अलग 3 सवाल है यहाँ पे। ज्योमेट्रिक मीन 1 होना चाहिए, अर्थमेटिक मीन देखते हैं। सो वैसे यूजुअल तरीके से आप अगर इस क्वेश्चन को लेंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, बट इस तरह के टैंजेंट प्रॉब्लम में ना क्लॉडेट्स को अगर आप यूज़ करो, इस आइडिया को जो मैंने छोटा सा यहाँ पे लेफ्ट में ब्रैकेट में डाला है, तो बहुत फटाफट आपको सोल्यूशन मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। सो सॉल्विंग फॉर ए, पुटिंग y = 0, कैपिटल Y = 0, यू विल गेट x, कैपिटल X एज x - y dx/dy, और b क्या आएगा, x को 0 डालेंगे तो आएगा कैपिटल X को y, कैपिटल Y निकालेंगे तो y - x dy/dx। ठीक है, तो अब जैसे देखा जाए तो a जो है आपका, अगर p के टर्म में लिखूं तो xp - y/p, 0 है, p है dy/dx, और b आपका है y - xp। ठीक है, p इज dy/dx, p लिया गया है dy/dx। तो अगर जैसे पहला सिचुएशन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हार्मोनिक मीन कह रहा है, नहीं रेसिप्रोकल ऑफ द कोऑर्डिनेट्स 1/xp - y, और ऊपर p आ जाएगा, प्लस 1/y - xp इज इक्वल टू 2/1, यानी 2 है ये। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, फाइनली इसको सिंपलाई करना बहुत इजी है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, बस माइनस साइन का फर्क है। यू कैन चेक xp - y, y - px। सो इट इज़ बेसिकली p - 1 लिख सकते हो इज इक्वल टू 2/xp - y। तो फिर से हम इसको लिखें तो y इज इक्वल टू लिखा जा सकता है px प्लस 1 - p बाई 2। तो आप देखिए ये क्लॉडेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, क्लॉडेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो क्या है बच्चों, कौन सा कर्व है, y इज इक्वल, जस्ट रिप्लेस p बाई c, तो cx प्लस 1 - c/2। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस आ गए हमारा, यही आंसर है इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन, इग्नोरिंग द सिंगुलर सॉल्यूशन। हालांकि इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन शायद इन्वॉल्व बनता नहीं, हर कर्व में इन्वॉल्व, हर फैमिली ऑफ लाइन से करस्पॉन्डिंग मिल जाए ज़रूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे एक शायद वर्टिकल लाइन आता है, वो c के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए और x निकालिए, c को x के टर्म में निकालिए और c को वापस x के टर्म यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरिंग डिस्कशन ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरली आपको जनरल सॉल्यूशन ही पूछा जाता है, वो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं। तो ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो याद रखिएगा xp - y बाई p। जो केस नंबर 2 पे चलते हैं, इसमें है xp - y बाई p, और इसका ज्योमेट्रिक मीन तो प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, और यहाँ था y - xp, आई थिंक ये 1 हो जाएगा। ठीक है,
और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो y माइनस एक्स पी को लिखा जा सकता है माइनस ऑफ, मतलब होल स्क्वायर हो गया, एंड देन y इज इक्वल टू एक्स पी पी एक्स प्लस यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट ऑफ माइनस पी प्लस माइनस। तो यहाँ पे हम देखें अगर सॉल्यूशंस सीधा क्लोराइड्स का यूज़ करते हैं, क्लोराइड्स डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है CDE, और इसमें सीधा उसी फॉर्मेट में है ये एग्जैक्टली, जैसे x का कोफिशिएंट p होना चाहिए, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, इस फॉर्मेट का ये। तो ये सोल्यूशन सीधा हो जाएगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस सी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब प्लस माइनस का डिसीजन मैं यानी देख रहा हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से आएगा। और इसमें वैसे सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, जैसे प्लस साइन के साथ अगर देखें तो जैसे मैं बात कर रहा था ना डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू सिंगुलर सॉल्यूशन अगर निकालना है जनरली, एक बार मैं इसमें करके दिखाता हूँ। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये है इंटीग्रल सॉल्यूशन को ही डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना आपने, विद रिस्पेक्ट टू सी करें तो ये आएगा 0, पार्शियल डिफरेंशिएशन सी के रिस्पेक्ट करना है, ठीक है ना। तो y नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा x, y का 0 हो गया, dy बाई डी सी 0 गया, x माइनस का प्लस साइन के साथ लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ आएगा 1/2 रूट माइनस सी, और ये प्लस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 माइनस सी, तो c की वैल्यू आ रही है -1/4x। ऑलराइट, सो यहाँ पे -1/4x स्क्वायर, हाँ। तो अब जैसे कि यहाँ पे जब आपने वापस रखा इसको यहाँ पे, तो ये आ गया -1/4x, और माइनस सी की वैल्यू थी 1/4 प्लस 1/2x। तो फाइनली जो सिंगुलर सॉल्यूशन ये कहलाता है माइनस 1/4x आ रहा है, 1/4x ये कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। जैसे कि ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मतलब सी में कॉन्टिन्यूस चेंज के साथ ना उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो इमीडिएट जो मेंबर होते हैं ना उसके, वो काफ़ी क्लोज हैं, तो वहीं पे टच करता हुआ जाता हुआ कॉमन एक्स वाई पे, इसलिए सी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया गया, वहाँ से एक एनवेलप जो है बन के आता है, वही है ये एनवेलप। सिंगुलर सॉल्यूशन यही है, आप चेक कर सकते हैं, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये पक्का है। अपार्ट फ्रॉम द टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन, एक सिंगल अलग से एक सिंगुलर सॉल्यूशन ये आ गया। इनफैक्ट ये भी है कि कुछ आप और भी सॉल्यूशन बना, अपार्ट फ्रॉम इंटीग्रल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, आप इंटीग्रल और सिंगुलर सॉल्यूशन को मिक्स करके भी कई सारे एक फैमिली बना सकते हो। कुछ पार्ट सिंगुलर सॉल्यूशन ले लिया और रिमेनिंग पार्ट में इंटीग्रल सॉल्यूशन ले लिया, तो ऐसे करके इनफाइनाइट आपके मिक्स सॉल्यूशन भी आ सकते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। वैसे इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। और थर्ड पार्ट में बच्चों क्या था, अर्थमेटिक मीन, यानी एक्स पी माइनस वाई बाई पी प्लस वाई माइनस एक्स पी, ये जो है आपका आना चाहिए। आई थिंक अर्थमेटिक मीन वाज 1 ना, तो इट इज़ 2, सम इज़ 2। सो यहाँ से फिर से देख सकते हैं आप कि वाई माइनस एक्स पी कॉमन अगर लेते हैं तो -1/p + 1 = 2। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ रहा है px एंड क्या आ रहा है प्लस 2p अपॉन p - 1 - p प्लस 2p अपॉन 1 - p, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2p अपॉन 1 - p। ओके, so this is the final differential equation here and this is again what क्लोरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बार बार ये इस तरह का एप्लीकेशन दिख रहा है आपको, इस फॉर्मेट में बनता है टेंजेंट के क्वेश्चन में कई बार। सो इसका जो सोल्यूशन है, इसका जनरल जो इंटीग्रल सोल्यूशन है वो आपका है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी 2c अपॉन 1 - जस्ट रिप्लेस p बाई c। तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन कहलाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशंस,
इग्नोरिंग द सिंगुलर सोल्यूशन, यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल सोल्यूशन ये है, पूरा फैमिली है इसका। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहोगे तो वो यही आएगा जो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो उल्टा अगर फॉर्मेशन से करें, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन फैमिली से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहते, मतलब इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब आप गिवन फैमिली से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते, डिफरेंशियल इक्वेशन से गिवन ये जो फैमिली हमने फाइंड किया, इस तरह से क्लॉरेट्स का काफ़ी एप्लीकेशन मिलता है टेंजेंट प्रॉब्लम्स में। सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। बच्चों, आई होप यू एंजॉयड इट एंड सो मेनी थिंग्स वी टुक अप टुडे। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी। जनरली वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसलिए मैंने कुछ ईजी, कुछ टफ, कुछ लेंदी क्वेश्चन भी लिए थे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबका जो है सेम है देखा जाए तो। सो हमें जनरल टाइम पे कुछ चीज़ें लेके और फिर जो भी कंसर्न चीज़ें। सो आई विल टॉक अबाउट एकलव्य प्रोग्राम। एज यू नो, हर वीडियो में हम लोग शेयर करते हैं कि आप लोग ज़रूर इसको पहले आप पता कर लें अच्छे से। आपको अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न या डाउट है तो आप जाएँ गूगल करें और गूगल पे आप सर्च करें। जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फीडबैक भी दिया हुआ, तो आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। काफ़ी मतलब कह सकते हो रिवीजन के हिसाब से तो बेस्ट प्रोग्राम है। और एकलव्य में काफ़ी सारे करिकुलम हम लोग यहाँ पे कैरी करते हैं और टाइम टू टाइम उसके इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगे, तो आपका डेफिनेटली जो है प्रिपरेशन लेवल काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। कुछ यूज़फुल लिंक्स हैं यहाँ आप देख सकते हैं। नोटिस बोर्ड पे आपके सारे जो रिलेवेंट जो भी अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप इसको QR कोड इसको स्कैन करके चेक कर सकते हैं। टाइम टू टाइम यहाँ पे हम डालते रहते हैं सारे डिटेल्स। एंड इफ़ यू आर JEE एस्पिरेंट्स गिविंग JEE इन नेक्स्ट ईयर 2023, तो आपके लिए अलग से एक टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम जो है लिंक है यहाँ पे, इसको आप जाएँ और यहाँ पे भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे बच्चों। इफ़ यू आर गिविंग JEE इन 2024, तो दिस इज़ द लिंक फॉर यू। एंड वी इम्पैक्ट चैनल हमारा, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के JEE के काफ़ी अच्छे डिटेल सोल्यूशन, दिस ईयर ऑल्सो 2022 के भी 1-to-1 सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए हैं JEE के। और KVPY के प्रीवियस का पहले जो एग्ज़ाम KVPY के हुए हैं उनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो उनको हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है, डिफरेंट मेथड से बताया गया है। तो आप होप आप इन्जॉय करोगे। आप जाओ और इसमें देखो, काफ़ी नई चीज़ें मिलेंगी आपको। वी इम्पैक्ट चैनल पे आपको सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं कि एकलव्य के बारे में। नाउ द टाइम फॉर द टीजर क्वेश्चन फॉर द मंथ सितंबर। द डबल रिएक्शन प्रॉब्लम है, केमिकल रिएक्शन। यहाँ लिखा है, लेट अ सब्सटेंस विद इनिशियल क्वांटिटी F0 टर्न्स इनटू अनदर सब्सटेंस एंड फ्रॉम द प्रोडक्ट दस ऑब्टेन्ड अ सेकेंड प्रोडक्ट दैट इज द थर्ड सब्सटेंस। एक से पहले दूसरा बना और जैसे ही दूसरा बना फिर तीसरा बनना स्टार्ट हो गया, इसे बोला डबल रिएक्शन बन, ठीक है। बिगिंस टू जनरेट इमीडिएटली बोथ द रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड प्रोपोर्शनली कांस्टेंट्स आर K1 एंड K2 फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली। दोनों फर्स्ट ऑर्डर के हैं, ये दिया हुआ है। और फर्स्ट ऑर्डर का आपको पता है कैसे क्या मीनिंग होता है, जो रेट ऑफ चेंज इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट, है ना, एट दैट मोमेंट। तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट गिवन है। अप्रूव करना है कि आफ्टर टाइम T द अमाउंट A ऑफ द फाइनल थर्ड प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्रोडक्ट इज A इज इक्वल F0 माइनस F0 बाई K2 माइनस K1 टाइम्स K2 e रेज पर माइनस K1T माइनस K1 e रेज पर माइनस K2T। इसको ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया आपको लगेगा क्वेश्चन ये। और आप बेसिक से हिट करें और देखना है इसको। अगर इफ़ यू कुड डू दिस क्वेश्चन तो कर पाते हैं तो मुझे हमें बताएं और हमें सॉल्यूशन भेजें इसका एकलव्य support@vedantu.com पे मेल कर सकते हैं। और सब्जेक्ट नेम आपको यहाँ पे मैथ्स लिखना पड़ेगा ऐसे करके, और फिर आप भेजें इफ़ योर सोल्यूशन इज़ करेक्ट। और वी थिंक दैट आई मीन या लाइक सोल्यूशन अगर बहुत अच्छा लगा तो विल रीच टू यू एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ एकलव्य डायरेक्टली, ठीक है। सो बच्चों, सो दिस वॉज फॉर टुडेज सेशन। होप यू enjoyed it and bye bye, take care, see you in the next week. Okay, all right.